Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the chapter number 6 and the lecture number 27, and I think this is the last topic of this chapter number 6. In that chapter, that both the topics, which are the topic I will tell you, that is very important, because that the both the questions, they at least one they ask in a Mumbai University exam, okay, purpose. So that is the two topics. So which are the topic? First topic is nothing as your Ajax versus a traditional approach, and second question is what? The rich internet application, that the short form RIA, okay, that is the characteristics they ask. So both question, Ajax versus traditional approach and the RIA characteristics. Okay, so we are coming into the point. So before you subscribe my channel and share my channel. Okay, so let us start with the first topic, that is nothing as traditional versus Ajax, whatever the approach we have. Okay, the first, you know very well that traditionally how we uh, the work or how we perform the your application in a web system architecture. Already we seen that the part number 2, 3 and 1, the diagram on there. Okay, so that here the diagram which is to be different, that is which is to be based on the applications. Okay, so and that we create the architecture, and using architecture we can expand on there. Here what we have the applications, suppose that the client machine and that is the server machine. Okay, so and that client, suppose from the client and the browsers, one of the requests we have to passes, suppose whatever the request we have to passes. Okay, जैसे कि लॉगिन फॉर्म है या कोई भी एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर है, कोई भी कुछ भी एप्लीकेशन है, वहाँ से आप अगर रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर को. ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस विच इज टू बी गोइंग ऑन देयर, दैट इज द प्रोसेस first. Okay, and then the request in the form of they passes to your server. The server, they take that the request. Okay, once they take the request, they find out what kind of the request we have, then they resolve that the request, and then they generate according to a respectively that the request generate what, a response respectively that request or uh, that whatever the pass the request on there. ओके, जैसे उसने जनरेट किया रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वही रिस्पॉन्स एक पेज के फॉर्मेट में देगा. ओके, दैट इज नथिंग एज योर द थर्ड वन, द सेकंड वन दिस वन, द थर्ड वन दिस वन. ओके, तो उसने प्रोसेस कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया एक पेज के फॉर्मेट में, और वही पेज रीलोड होता है आपके क्लाइंट के मशीन में, एंड दैट इज we got in the form of HTML, or that the whatever the front end programming you use, in that format we can see. Like जैसे कि सपोज अगर मैंने कोई मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका. सपोज मैंने एक लॉगिन पेज ओपन किया था जैसे कि facebook.com का, तो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया फर्स्ट पेज में, वो रिक्वेस्ट मेरी गई यहाँ पे, रिक्वेस्ट जाने के बाद वो सर्वर पे गई, सर्वर पे जाने के बाद उस फेसबुक का जो भी सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट देखेगा कि यार मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड इस बंदे का आया है, तो वो प्रोसेस करेगा, फिर उसको रिजॉल्व करेगा. रिजॉल्व करने के बाद उसको समझ में आया कि यस दैट इज द यूज़र नेम पासवर्ड इज करेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू व्हाट दे जनरेट द रिस्पॉन्स. तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद ये सारा प्रोसेस हो गया, तो रिस्पॉन्स जैसे जनरेट किया तो एक पेज में दिया. क्या पेज में दिया कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसके प्रोफाइल पेज का है. मतलब नेक्स्ट वाला जो पेज है दैट इज नथिंग एज व्हाट, द रिस्पॉन्स. जैसे यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो उसको प्रोफाइल पेज उसको दिखता है, तो दैट इज पेज इज नथिंग एज द थर्ड नंबर. ओके, तो वो पेज रीलोड होता है आपके क्लाइंट साइड पे, मतलब रिफ्रेश होता है, रीलोड होता है. ओके, एंड देन दैट द रिस्पॉन्स वी गॉट. ओके, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको प्रोफाइल पेज मिलता है वहाँ पे, ओके, सो आप क्या करते हैं, फिर लेफ्ट साइड को आपके पैनल होता है, उस पैनल में बहुत सारा टैब्स होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं, फिर फॉरम होते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग वी हैव. ओके, जैसे आप फ्रेंड्स के क्लिक करते हैं, व्हाट द अगेन द वन रिक्वेस्ट विच इज बी जनरेटेड ऑन देयर. ओके, क्या होता है,
वहाँ पे फिर से एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स पे आपने क्लिक किया कोई टैब पे तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर प्रोसेस करेगा, अरे हाँ इस यूज़र नेम पासवर्ड के रिगार्डिंग और रिलेटेड और ये यूज़र नेम के रिलेटेड जो जो फ्रेंड्स है उन फ्रेंड्स की सारी जो रिक्वेस्ट है या जो कनेक्टेड फ्रेंड्स है उनका जो भी पेज है वो दिखा दे, ये जनरेट करता है यहाँ पे रिस्पॉन्स, और वहाँ पे आपको लिस्ट दिखती है। अब पेज फिर से रिफ्रेश होता है और आपको वो फ्रेंड्स की लिस्ट दिखती है। ओके, सो इन दैट वर्ड व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज रिलोड हो रहा है हमेशा, कहाँ पे, एज अ क्लाइंट साइड पे। जैसे रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो पेज जनरेट होता है, दैट इज द ट्रेडिशनल, ये चलता ही आ रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एजेक्स वेब एप्लीकेशन बनाया, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी मैंने आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में भी बताया है। ओके, तो डायग्रामेटिकली कैसे बताऊंगा एप्लीकेशन के थ्रू, इन दैट वे। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पेज का जो रिक्वेस्ट था, ओके, तो पेज का फंक्शन उसने एजेक्स इंजन को भेज दिया, फिर एजेक्स इंजन उसको देखेगा, प्रोसेस करेगा, फिर जनरेट करेगा रिस्पॉन्स। ओके, उसी दौरान वो क्या करेगा, अनदर पेज को भी रिक्वेस्ट भेजेगा। ओके, या एक ही टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे एजेक्स इंजन के एप्लीकेशन चलेंगे। मैंने एक रिक्वेस्ट दिया था, सपोज यहाँ पे ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे पहला क्लॉक चल रहा है जेएस के थ्रू, फिर यहाँ पे चल रहा है आपका यूज़र नेम पासवर्ड वाला जो कि मैंने बताया अभी, मतलब ये वाला, सपोज ये वाला। ओके, और ये वाला हो गया आपका क्लॉक का। तो दोनों क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। ओके, तो ये मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया इसको, ओके, ये प्रोसेस कर रहा है, ये उसको दे रहा है, जनरेट कर रहा है, फिर इसको रिस्पॉन्स आ रहा है, ये दे रहा है उसको रिस्पॉन्स। ओके, उसी सेम टाइम पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे भी प्रोसेस कर रहा है वॉच के रिगार्डिंग। अभी ये वॉच जो है वो सर्वर पे है, तो सर्वर से वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि अभी मेरा टाइम क्या हुआ है, तो वो उसको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और उसको भेजेगा, हाँ ये तेरा ये टाइम हुआ है, और ये उसको अपडेट कर देगा उसी पेज के बीच में। तो ये क्या हो रहा है, दोनों रिक्वेस्ट जो जा रही है एट द सेम टाइम जा रही है, और सेम टाइम वहाँ पे अपडेट हो रहा है क्लाइंट मशीन पे। दैट इज़ द जो एजेक्स वेब एप्लीकेशंस। इसका प्रोसेस तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको वेब आर्किटेक्चर के थ्रू, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, बट यह डायग्राम एप्लीकेशन के थ्रू कैसे दिखाना है, दैट इज़ द थिंग। और यही एक्सप्लेनेशन और डायग्राम आपको देना है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि एजेक्स वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ये आपको डिज़ाइन करके और एक्सप्लेनेशन करके देना है, दैट इज़ द थिंग। ओके, द सेकंड टॉपिक और सेकंड पॉइंट इज व्हाट, द रिच इंटरनेट एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो बेसिकली 6 है, मैंने 5 ही लिए हैं। ओके, तो पहला वाला जो है परफॉर्मेंस। ओके, ये परफॉर्मेंस देता है हमेशा बेटर दैन द ट्रेडिशनल जो भी अप्रोच आपने देखा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है थ्रू द एजेक्स इंजन के थ्रू। ओके, और ये सारा प्रोसेस जो चलता है वो अपलोडिंग भी चलता है। सो व्हाट, द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वर, वी स्टार्ट हियर, द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वर also improved by the offloading possible processing work on the client system। ओके, और ऑफलाइन पे भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बेटर दैन जो प्रीवियस आपने एजेक्स बनाया होगा उसको। ओके, सो दैट इज द परफॉर्मेंस, ये देता है अच्छी तरह से। देन सेकंड थिंग इज व्हाट, बेटर फीडबैक। यस ऑफ कोर्स, ओके, बेटर फीडबैक किस हिसाब से, कि मैंने तो पेज नॉर्मल वेब सिस्टम आर्किटेक्चर में बनाए थे, तो जब रिस्पॉन्स आता है मुझे, तो रिस्पॉन्स रीलोड होने के बाद मुझे मिल रहा था, बट यहाँ पे क्या है, विदाउट रीलोडिंग वी गॉट द आउटपुट फ्रॉम दैट द सर्वर्स। ओके, सो दैट इज द रियल टाइम कंफर्मेशन एक्शंस एंड चॉइस एंड informating and detailed error message we got from the client side applications। okay, so that is the better feedback we got on there। okay, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप उसको यही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है सब कुछ कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। ओके, देन कंसिस्टेंसी, द थर्ड इज व्हाट, कंसिस्टेंसी ऑफ लुक एंड फील्ड। मतलब कि
अभी वही जो एजेक्स का एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो उसका जो इंटरफेस है और जो दिखने का तरीका है, एक्सपीरियंस है, ओके, वो ब्राउज़र और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं और उसको वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है बड़ी अच्छी तरह से, ओके। अगर आपने वही एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र में दिया तो उसको वो कंट्रोल करने का काम भी एजेक्स करता है, तो उसको कंसिस्टेंसी, लुक एंड फील भी मिलता है। यहाँ पे एक बेटर आपको एक फीचर है, ओके। कोई भी ब्राउज़र पे लगाओ, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगाओ, उसका फील एंड गुड कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी रहेगा, ओके। उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा जो आपने लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग। देन द ऑफलाइन यूज़, मतलब कि अगर आपने वेब अगर होस्ट किया है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था ए वेब सर्वर, तो वहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो विदाउट इंटरनेट वी कैन रन दैट द अजैक्स applications on that the normal systems or normal applications on there, okay। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं, ऑफलाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू दी एनी वेब सर्वर्स और okay। So then we can discuss about the performance impact, okay। So that is the impact what we got from them, okay। Depending on the applications and network characteristics, the RIAs can often perform better than traditional apps. In particular application, they avoid the round trips to the server by processing locally on the client, are likely to be noticeable faster, okay, and offloading such a processing to the client machines can also improve the server performance. So it means what, मैं हमेशा उसको रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर दूसरी बार फिर से रिक्वेस्ट दूंगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम जो है वो हमेशा चेंजेस होता रहता है, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी कभी रिक्वेस्ट देने के टाइम पे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो वो लेके और रिस्पॉन्स दे के वो पेज रिलोड करके आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये सारा राउंड ट्रिप टाइम का जो टाइमिंग है वो आपका यहाँ पे बच रहा है थ्रू दैट अजैक्स, ओके। तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्जीक्यूशन पे पड़ता है, ओके। अगर यही चीज़ मैं अपलोडिंग यूज़ करूँ तो जो क्लाइंट मशीन है उसका जो सर्वर परफॉर्मेंस है वो और बेटर रहता है, ओके। सो दैट इज़ अ थिंग वी हैव टू ऑन देयर। कौन से हैं? परफॉर्मेंस, बेटर फीडबैक, कंसिस्टेंसी ऑफ लुक एंड फील्ड एंड ऑफलाइन यूज़ एंड परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। तो ये चीज़ें मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे नहीं लगता कि मैं बेटर और जो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू मैं बताया, और बेटर आप भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। डिफरेंट बुक्स हैं, वहाँ पे पढ़कर आप कर सकते हैं। दैट इज़ अ थिंग, ओके। सो मैंने इस पे यहाँ पे इतना फोकस नहीं किया है कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट्स इट, ओके। सो हियर वी हैव राइट नाउ दैट इज द क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल वर्सेस अजेक्स एंड द रीच और रियाज कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो आप उसके लिए एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको बना के रखो या उसकी चीज़ें आपके ध्यान में रखो, दैट्स इट, ओके। सो थैंक यू सो मच।